Okay, so let us continue the chapter electromagnetic induction. We have to discuss about the last topic in this chapter today, that is about the transformer. Okay, देखो बेसिकली अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह से जनरेट होता है. तो उसके लिए हमने देखा कि इफ सपोज वी हैव अ हॉर्सशू मैग्नेटिक पोल पीसेस like this consisting of north pole and south pole, and suppose we have a coil to be kept here in this magnetic field. ठीक है, yes, suppose this is the coil kept like this here, and suppose this coil is rotated in this magnetic field. So as soon as it is rotated, we can see that there is a induced EMF produced in this coil, and this induced EMF is always a sinusoidal one, or we can say alternating one. Alternating means if we draw the graph of this EMF, then it looks like this. So you can see that for first half cycle, it is positive. This terminal acts as a positive charge, and this one will act as a negative charge, right? And hence the current will start flowing through this bulb in the anticlockwise direction like this. But as soon as this coil just flips, and we can see that this polarity just gets reversed, and this terminal will become positive charged, and this terminal will become negative here. And because of that, it will cause a current to flow in the opposite direction, that is clockwise here. So in this way, we can see the current generated due to this this alternating circuit is also an alternating one. तो इस alternating EMF की वजह से current भी alternating ही पैदा होता है, ठीक है. For first half cycle, the current will also be positive, means it will be anti-clockwise direction, flowing in the anti-clockwise direction. But in the next half cycle, it becomes negative. That means it flows for the clockwise direction in this way. So the direction and magnitude, both of these values just go on interchanging or go on changing continuously at a very, very high speed due to this rotation of this coil into this magnetic field. Okay. So this is actually the source of magnetic source of alternating EMF or alternating current. Remember, so this alternating current, ये जो पूरा जो सिंबल है, ये पूरा जो असेंबली है, it can be represented in the single way like this. तो ये जो होता है, this is a symbol for the source of alternating voltage. Remember, तो जब हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा जब ड्रॉ करते हैं, तो ये चलो बल्ब तो अपनी जगह पे है, नो डाउट, लेकिन ये जो सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये किधर है, ये पूरा जो इसके, ये पूरा जो असेंबली है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऐसे हमको समझना है, ठीक है. तो दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, it means they are going to be a coil which is going to be rotated in the magnetic field. So whenever a coil rotates in a magnetic field, the induced EMF produced here is just like alternating. For the first half cycle, it remains like this, positive, negative, but it just need the next half cycle, it reverses its polarity and causes the current to reverse its direction also. तो करंट को भी वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है. दैट मींस दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग ईएमएफ और कंटिन्यूअसली चेंजिंग करंट. ओके, सो नाउ इफ वी हैव दिस ईएमएफ, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जो है, तो उसको अगर हम सपोज ई नॉट बोल देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, तो उस करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी तो आई नॉट होगा, उसको हम बोल सकते हैं इस तरह से ई नॉट एंड आई नॉट, नो डाउट. और इसके इसके भी अलावा, इससे भी आगे जाके जो इनके ये जो ईएमएफ और करंट ये दोनों फ्लो हो रहे हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है, तो उसको हम आर बोल सकते हैं,
और यहाँ पे भी ओम्स लॉ अप्लाई होता है, रिमेंबर। और इसमें ये जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब क्या, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो ईएमएफ होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ये टाइम के हिसाब से है, ये टाइम के हिसाब से ईएमएफ कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो कभी वो जीरो होगा, इन इनिशियल इंस्टेंट इट विल बी जीरो, एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट विल बी मैक्सिमम, that is E naught, then again at particular instant it will also be again become zero, and at a particular instant it will become minus E naught, and so on like this. So it will go on varying in the same way here. Even I naught, I के बारे में भी, करंट के बारे में भी हम ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं with respect to time. It will also be like alternating, so it will be zero at some instant, then again it will become I naught, it will go on increasing and will become I naught at a particular instant, then again becomes zero at a particular instant, then again becomes minus I naught at again another instant, and zero I naught plus zero minus I naught, and like this it will just go on varying in the same way as this EMF varies. That's why it is called as alternating EMF, and this is called as alternating current, remembers. And this alternating current actually is called as AC, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को ही हम AC बोलते हैं, और उसके बारे में हमको बहुत डिटेल में स्टडी करना है अगले चैप्टर में, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है तो एक्चुअली इसका ही कंटिन्यूएशन है। एक्चुअली लास्ट ईयर के सिलेबस में, मतलब पुराने सिलेबस में ये दोनों चैप्टर्स एक्चुअली कंबाइंड थे, इकट्ठा थे, लेकिन अभी उन्होंने वो अलग अलग किए हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में भी अलग अलग दो चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज सेपरेट एंड AC इज, मतलब अल्टरनेटिंग करंट्स इज सेपरेट. That's why they have also separated it in your syllabus also, but previously they were connected or they were combined in a single chapter, ठीक है। तो अभी हमको आज के लेक्चर में ये देखना है कि whenever this alternating current is given as an input to the transformer, what is this transformer does it. तो इसमें हमको ये समझना है कि देखो ट्रांसफार्मर मतलब क्या, कि एक सिंपल सा एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज को कम करने के लिए यूज किया जाता है। देखो ट्रांसफार्मर इज जस्ट लाइक अ डिवाइस, सपोज दिस इज अ ट्रांसफार्मर, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज इफ वी सपोज गिव एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट, ओके, 230 वोल्ट का हम इनपुट दे देंगे, ऑब्वियसली alternating input of 230 volt is given here to this transformer. What will happen is in the output we can get another voltage which may be greater or may be less than this 230 volt. That means there are transformers which are like this, which will produce a 2300 volt in the output. That means the graph of output voltage will be like this, which will be 10 times magnified than this one here. तो मतलब इसका ग्राफ देखो और इसका ग्राफ देखो, दिख रहा है क्या फर्क दिख रहा है उसके दोनों के बीच में। ये जो है बहुत छोटा है, 230 वोल्ट का ईएमएफ जो है वो यहाँ पे हमने एज अ इनपुट दिया, तो उसमें से आउटपुट में हमको क्या मिला, ये 2300 वोल्ट का वोल्टेज हमको मिल रहा है, वो भी ऑल्टरनेटिंग है, नो डाउट। और दूसरे टाइप के ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं, सपोज एक ट्रांसफार्मर है जिसको हमने एक इनपुट दिया जो कि फिर से एक बार 230 वोल्ट का ही है, नो डाउट, but abhi this time this transformer produces an output which is also alternating again, but if we just draw the graph, तो अब यहाँ पे इनपुट का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो तो सेम ही आएगा इसके जैसा, बिल्कुल 230 वोल्ट का ग्राफ, नो डाउट। लेकिन जो ग्राफ हमको आउटपुट में मिलता है, तो दैट आउटपुट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, लाइक दिस, मे बी लाइक इट इज जस्ट 10 वोल्ट और 23 वोल्ट, ओके। देखो ठीक से 23 वोल्ट, तो इसका मतलब हमको 230 वोल्ट से 23 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट में। तो इसका ग्राफ देखो कितना छोटा है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वही 23 रहने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उसका जो ग्राफ है वो बहुत छोटा मिलने वाला है हमको। लेकिन जबकि यहाँ पे ओरिजिनल जो ग्राफ था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि वहाँ पे 230 वोल्ट मैक्सिमम ईएमएफ था। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, which out of which the first type category of transformer is also called as the step up transformer. Remember, step up transformer, okay. What do you mean by this step up transformer? The transformer which converts a low AC voltage into high AC voltage,
is called as a step up transformer. But on the other hand, we have this step down transformer. Step down transformer, what do you mean by this? So step down transformer means the transformer which converts a high AC voltage into a low AC voltage, that is called as a step down transformer. ओके, दोनों के बीच में फर्क समझ में आया ठीक से? बट एक्चुअली अभी सवाल पैदा होता है कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा क्या होता है जो वो 230 वोल्ट का 2300 वोल्ट कर देता है, या 230 वोल्ट का 23 वोल्ट भी कर सकता है। ठीक है, मतलब 10 टाइम्स बढ़ा भी सकता है या 10 टाइम्स घटा भी सकता है वोल्टेज को। ना सिर्फ 10 टाइम्स, बट इट डिपेंड्स how many times we want. We can just construct a transformer which will increase the voltage up to 100 times also, or we can construct a transformer which can increase the voltage up to by 1000 times also, no doubt. So just it is a matter of example. 10 just मैंने example पे के तौर पे लिया है, जरूरी नहीं कि वो 10 ही हमेशा होगा। But in short what we can say is transformer is a device which can convert a low AC voltage into high AC voltage, or high AC voltage into low AC voltage. Okay, तो AC वोल्टेज को कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है तो उसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, इसीलिए उसको ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। देखो ट्रांसफॉर्मर उसके नाम में ही उसका मीनिंग है, समझा कैसे? ट्रांसफॉर्मर मीन्स इट ट्रांसफॉर्म्स समथिंग। व्हाट डज इट ट्रांसफॉर्म्स? वोल्टेज, ऑब्वियसली, नहीं तो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम वो करता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब दो चीजें उसमें आती है, एक तो लो का हाई करना या तो हाई का लो करना, दोनों चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है, दोनों को ट्रांसफॉर्मर ही बोलेंगे। चलो ठीक है, नाउ विल जस्ट सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, हाउ इट लुक्स लाइक। बेसिकली इट लुक्स लाइक अ सॉफ्ट आयरन मेड सॉफ्ट आयरन का बना हुआ इस तरह का एक फ्रेम होता है, थिक फ्रेम है ये। ओके, दिस इज द फ्रेम मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक सिंपल सा फ्रेम है ये। Basically here this is the rough diagram of transformer we can see. So अब यहाँ पे ये पूरा जो सॉलिड का बना हुआ है, ठीक है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है, आयरन का स्पेशली, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, दो वायर्स इसके ऊपर वाइंड करते हैं। तो एक होता है प्राइमरी, उसको हम बोलते ही है प्राइमरी क्योंकि उसके अंदर हम डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जोड़ने वाले हैं। ये देखो ये वायर इस तरह से हमने इसके ऊपर वाइंड कर दिया। ठीक है, देखो ठीक से यहाँ पे ये इधर से हम एक टर्मिनल निकालेंगे और यहाँ पे दूसरा टर्मिनल रहेगा। सो दैट मीन्स वी हैव बाउंड दिस वायर ऑन दिस होल कोर। तो इस पूरे इस स्ट्रिप के ऊपर हमने ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर ये वायर वाइंड किया हुआ इस तरह से। ठीक है, और अभी सेकेंडरी में मतलब इसी सॉफ्ट आयरन के इस पार्ट के ऊपर ये साइड में दूसरा वायर वाइंड किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे हम एक कनेक्शन दे देंगे और इधर से दूसरा कनेक्शन ले लेंगे। ठीक है, सो दीज आर द टू कनेक्शंस, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस, ये इसका आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये जैसे हमने यहाँ पे इस तरफ ये साइड में अगर हमने एक सोर्स कनेक्ट कर दिया,
ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दिया, देखो ठीक से अभी as soon as this alternating source is connected in this primary, what will happen is the current will start flowing through this primary and that current will be actually alternating like this. So at some instant the current will be like this clockwise, and in the next instant it will be just anti-clockwise. And when the current will become clockwise, magnetic flux will be generated in this core. Okay, and this magnetic flux, we can show these flux lines in this way. तो ये जो फ्लक्स है तो ये इस तरह से यहाँ पे पैदा होगा, और इस फ्लक्स का जो पार्ट है वो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ भी जुड़ा हुआ है, और सिंस दिस पार्ट ऑफ द फ्लक्स इज कनेक्टेड विद द सेकेंडरी कॉइल, देयर विल बी अ कंटीन्यूअस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दिस सेकेंडरी कॉइल आल्सो. ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी वाले कॉइल के अंदर भी उतना ही मतलब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे पैदा होगा, और वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा इस तरह से. लेकिन उसका जो वैल्यू है, उसका जो ईएमएफ है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं. होता क्या है ना कि यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि NP इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी सपोज, एंड सपोज देयर इज अ नंबर ऑफ टर्न्स NS इन द सेकेंडरी. ठीक है, तो सेकेंडरी के अंदर NS इतने नंबर ऑफ टर्न्स है और प्राइमरी के अंदर NP इतने नंबर ऑफ टर्न्स है. और अगर मान लेते हैं कि EP इज गोइंग टू बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, applied EMF in the primary coil, and suppose ES is going to be the applied induced EMF produced in this secondary coil. Okay, so it can be proved easily that the ratio of EMFs always remains the same as the ratio of number of turns in the two coils. That means EP upon ES is actually going to be same as this NP upon NS. ठीक है, बट एक्चुअली इसको हम इस उल्टा लिखेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ES upon EP is actually going to be same as NS upon NP, because this NS upon NP is actually called as turn ratio. Okay, turn ratio. तो इसका मतलब यहाँ पे जो टर्न रेशियो जितना भी हम रखते हैं तो उसके प्रोपोर्शन में हमको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मिलने वाला है. फॉर एग्जांपल, इफ वी कीप द प्राइमरी टर्न्स टू बी 1000, okay, and the secondary turns to be 100 only. समझो ठीक से, ठीक है. प्राइमरी टर्न्स कितने रखे हैं हमने 1000 और सेकेंडरी टर्न्स कितने रखे हैं 100. दैट मींस व्हाट इज द रेशियो ऑफ टर्न्स, वी कैन सी. तो यहाँ पे देख सकते हो टर्न्स का जो रेशियो होता है उसी प्रोपोर्शन में हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा. तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम सपोज 230 इतना वोल्ट दे देंगे इनपुट में तो तभी जाके हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, सिर्फ 23 वोल्ट मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये जो टर्न्स का रेशियो कितना है 1000:100. दैट मींस इट विल जस्ट रिड्यूस द वोल्टेज बाय 10 टाइम्स, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स आल्सो रिड्यूस्ड बाय 10 टाइम्स. तो सिंस द नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस्ड बाय 10 टाइम्स, द वोल्टेज विल आल्सो रिड्यूस्ड बाय 10 टाइम्स. बट इफ सपोज वी कीप दिस रिवर्स, अगर हम उल्टा करते हैं, मान लो कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज गोइंग टू बी सपोज 250, okay, and suppose the number of turns in secondary is suppose going to be 500. अभी वो ऐसे दिख रहे तो नहीं है क्योंकि ये इससे ये कम दिख रहा है, बट चलो मान लो कि ऐसा अगर होता है कि 500 number of turns is there in secondary and 250 number of turns are there in primary, and suppose we connect a 230 volt supply in the primary, then automatically how much voltage we will get here in the secondary? Just double of that, because number of turns of secondary coil is going to be the double of the primary one, and that's why if we connect a 230 volt as an input here, then we can get a 460 volt as an output here. Okay, so this is the example of step up transformer, because it increases the voltage here in this way. तो ये वोल्टेज जो है वो चेंज करने वाला जो डिवाइस है तो इसको ही ट्रांसफार्मर बोलते हैं. आखिर ये ट्रांसफार्मर जरूरी क्यों है, कहाँ पे यूज होता है उनका, कहाँ पे हम ऐसा हमको जरूरत पड़ती है कि 230 वोल्ट का 460 करो या 230 वोल्ट का 23 करो. तो they are used in many situations where the voltage requirement is different, because we know that some devices are not meant for heavy load. तो मतलब कुछ डिवाइसेस जो है जैसे रेडियो है, रेडियो के लिए हमको कितना वोल्टेज लगता है तुमको पता होगा, 4 सेल के ऊपर वो चल जाता है. 4 सेल्स, हर एक सेल जो है अगर 1.5 वोल्ट का मतलब 1.5 वोल्ट का अगर उसका ईएमएफ है तो 4 सेल का मिला के ईएमएफ कितना बनता है, 6 वोल्ट बनता है. बिल्कुल.
तो अभी सोचो अगर 6 वोल्ट पे चलने वाला जो रेडियो है, तो उसको अगर हम हमारा 230 वोल्ट मेन सप्लाई के साथ अगर जोड़ देंगे, तो सीधी बात है वो तो धुआं निकलेगा उसमें से, ठीक है, वो तो डैमेज हो जाएगा. एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, we will have to first of all we'll have to reduce this voltage of 230 volt into 6 volt first. So in order to reduce the voltage from 230 volt to 6 volt, so that it can be easily fed to the radio or any device which requires a small voltage like this, we can use this transformer here. तो इसलिए तुमने देखा होगा रेडियो के अंदर भी ट्रांसफार्मर बिठाया हुआ होता है, जो पहले इस 230 वोल्ट एसी को इस 6 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वो एसी का डीसी में कन्वर्ट करता है. जो आगे की बात है वो हमको अगले चैप्टर में देखना है, एसी का डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी हमको देखना होता है. तो इन दिस वे वी कैन यूज दिस ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू यूज द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन वर्क एट अ लो पोटेंशियल्स लाइक 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट. ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ऐसे छोटे छोटे वोल्टेज के ऊपर काम करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उनके लिए हम ऐसा छोटा वोल्टेज कहां से लेके आएंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है. वी कैन यूज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्मॉल वोल्टेज बाय यूजिंग अ लार्ज वोल्टेज, रिमेंबर. ओके, एंड दिस सेकंड थिंग इज दैट अभी लार्ज, कभी कभी हमको टेलीविजन जो होता है कि नहीं, टेलीविजन जैसे अभी आज के टेलीविजन नहीं जो एलईडी स्क्रीन के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन पुराने जमाने के टेलीविजन की बात कर रहा हूँ जो कि सीआरटी के ऊपर बेस्ड होते थे. सीआरटी मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या कैथोड रे ट्यूब उसको बोलते हैं. इस टाइप का ट्यूब हुआ करता था उसके अंदर, पिक्चर ट्यूब भी बोलते हैं उसको, और यहाँ पे एक कैथोड हुआ करता था और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते थे और यहाँ पे स्क्रीन रहता था और यहाँ पे हमको सब पिक्चर वगैरह जो है वो दिखता था. सो दिस टाइप ऑफ पिक्चर ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब इज देयर इन दिस टेलीविजन. जो बड़े बॉक्स वाले टाइप के जो टेलीविजन आते थे ना पुराने जमाने में, तो वो वाले टेलीविजन की बात कर रहे हैं. अगर वो टेलीविजन को जो एनोड और कैथोड इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लगता है 18,000 वोल्ट. अभी सोचो, how will you produce this 18,000 volt whereas we already have a 230 volts main supply. हमारे पास घर में जो बिजली आता है उसका मेंस का जो सप्लाई है उसका वोल्टेज कितना होता है, 230 वोल्ट होता है. इसलिए मैं बार बार ये 230 वोल्ट के एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. तो 230 वोल्ट का सिर्फ हमारे पास सप्लाई है और ये पिक्चर ट्यूब को काम करने के लिए लगता है 18,000 वोल्ट. कहां से लेके आएंगे? So we will have to use the transformer in the television box also. तो उस टेलीविजन बॉक्स के अंदर भी ट्रांसफार्मर बिठाया हुआ होता है जो क्या करता है 230 वोल्ट एसी सप्लाई का 18,000 वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है. ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट हमारा जो ट्यूबलाइट होता है, नॉर्मल ट्यूबलाइट जो पुराने जमाने में यूज किया जाता था, एलईडी ट्यूबलाइट नहीं, तो उसके जिसके अंदर चोक हुआ करता था और कॉइल हुआ करता था, तो वो उस टाइप का जो ट्यूबलाइट है उसको भी एक्टिवेट होने के लिए ऑलमोस्ट 630 वोल्ट का वोल्टेज लगता है. अभी सोचो 630 वोल्ट का वोल्टेज उसको चलने के लिए लगता है, बट वी डोंट हैव दैट सप्लाई. we have the supply of only 230 volts available here. So using this 230 volt supply and using a transformer in that coil, in that tube, we can produce a voltage of 630 volt, and because of that the tube can work even at 230 volt also. तो 230 वोल्ट के अंदर भी हम उसको अगर इनपुट दे देंगे ट्रांसफार्मर के जरिए, उसका वोल्टेज जो है वो 630 तक बढ़ा के लिया जाता है और उसकी वजह से वो ट्यूब चल पाता है. तो इस तरह से, so whenever we require the large voltage from a low voltage, we can use a step up transformer, and whenever we require a low voltage to be converted from a high voltage, then we can use a step down transformer. Okay, now we are in a position to understand how this formula can be derived. ओके अभी हमको थ्योरी देखना है, ठीक है. वी हैव टू सी द थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर. सो थ्योरी यूज डिराइव करने के लिए ये पूरा बड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम जरूरी नहीं है, ठीक है. वी कैन जस्ट ड्रॉ अ सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम इन विच द ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंबॉलिक फॉर्म. ओके, तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक फॉर्म है, देखो. दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉइल. ओके, and there is a secondary coil which is just kept near it here. Okay, so this is the secondary coil and this is going to be a primary coil. So primary coil के अंदर हम क्या करने वाले हैं,
एक एसी सोर्स कनेक्ट करने वाले हैं। ये कनेक्ट हो गया, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हम यहाँ पे एमीटर या तो फिर जो भी लोड जिसमें हमको एसी करंट चाहिए वो हम यूज करने वाले, कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, समटाइम्स 2 लाइन्स आर ऑल्सो ड्रॉन हियर इन बिटवीन दिस ट्रांसफॉर्मर, जस्ट एज टू शो देयर इज अ कोर ऑल्सो। ठीक है, तो उसका जो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, तो कोर कंटेनिंग ट्रांसफॉर्मर कैन बी डिनोटेड बाय दिस 2 लाइन्स बिटवीन। बट चलो ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिंबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड whenever the alternating supply is connected to this primary, alternating supply will be created in the secondary, but the voltage will be different. So suppose EMF in the primary is going to be EP, and EMF in the obtained in the secondary here is going to be ES. The number of turns in the primary is going to be NP, and suppose the number of turns in the secondary is suppose NS, and the current flowing through this primary is IP, and the current flowing in this secondary is going to be suppose IS. Okay, and one more assumption, which is one of the important assumption. The important assumption, it is that phi. What is phi here? Phi is the flux linked with one turn. ओके, फिर वो चाहे कौन किसका भी हो, प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, तो फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न इज गोइंग टू बी 5, राइट? सो हाउ मच विल बी द फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस प्राइमरी कॉइल? Just put it in the chat box. What is the flux link? Okay, so basically what happens is this flux linked with this primary coil will actually be equal to NP into 5. Do you agree with this? Just because, yes, the flux linked with one turn of anyone, primary or secondary, is going to be 5. So the total flux linked with primary coil will be NP into 5. We can call it as 5P. Okay, 5P can be written to be equal to NP into 5. Okay. Now, in the same way, we can just make an argument for secondary coil also. So what is the flux linked with secondary coil? It will be actually equal to LS into okay. Yes. So basically, this is the phi s, we can say phi s, which is going to be, sorry, NP into phi ना, और यहाँ पे phi s equal to क्या होगा? NS into phi. Yes. Now, if we use the Faraday's law on this secondary coil, ठीक है, तो secondary coil पे Faraday's law अगर यूज करेंगे, तो what will be induced EMF in that? So ES will actually be equal to d phi by dt, d by dt of that phi p, phi s, करेक्ट है? उसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है उसका रेट ऑफ चेंज यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से. दैट मीन्स वी कैन से दैट ES इज एक्चुअली गोइंग टू बी phi s के बदले क्या आने वाला है? ये phi NS into phi आने वाला है, तो इसलिए उसको लिख सकते हैं d by dt of NS into phi, करेक्ट है? जिससे हमको मिलता है, ये NS को हम कांस्टेंट करके बाहर ले सकते हैं और ES को लिख सकते हैं आराम से. ES is actually going to be NS into d phi by dt, correct है? Just give this is equation number 1. And in the same way here, we can apply the Faraday's law on this primary coil also, because since the current will be start flowing in the secondary, it will just generate induced EMF in primary back, and that's why the EMF generated in primary, that is EP, we can say. So EP will actually be equal to d by dt of
phi p, correct है, where phi p stands for the flux linked with this primary here, and this EP will actually be written to be equal to d by dt of what is phi p? We can see here np into phi, right? So we can get this as np into phi, and hence EP can be written to be simply equal to np into d phi by dt. Give this as equation number 2. And now we can just take the ratio of this equation number 1 and 2 so as to get the result. Okay, so just 1 divided by 2 gives ES upon EP is equal to, तो यहाँ पे इस तरफ क्या आएगा देखो ठीक से, तो ES का वैल्यू क्या है उस तरफ NS into d phi by dt है. ओके, and what is the value of EP here? It is NP into d phi by dt, right? So here we can just cancel out this d phi by dt from both numerator as well as denominator, and what we are left with inside is simply ES upon EP is going to be NS upon NP, and this is actually called as the principle of transformer, remember. But since the power is going to be the same, अब यहाँ पे देखो अगर ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज करता है तो क्या वो एनर्जी क्रिएट करता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को खत्म करता है, रॉन्ग साबित करता है? नहीं, ठीक है. इट डजंट वायोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट द एनर्जी प्रोवाइडेड इन द इनपुट is actually going to be same as the energy provided in the output. तो जो एनर्जी जिस रेट से हम इनपुट में डालेंगे उसी रेट से एनर्जी हमको आउटपुट में मिलने वाला है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट पावर, right? So we can say that the input power is actually going to be same as output power. So we can just equate the input power and output power. Okay, अगर हमने पावर का इक्वेशन अगर इक्वेट किया, अभी पावर मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय करंट गिव्स अस द पावर. सो इनपुट में जो पावर है वो कितना हमको मिलेगा? Okay, so we can see clearly that this EP into IP is going to be equal to ES into IS, and hence we are going to get that ये अगर रेशियो हमने लिया तो ES upon EP कितना बनेगा एक्चुअली? IP upon IS के बराबर बनेगा. Okay, so this is another ratio. ठीक है, so यहाँ पे कॉमन कौन है? इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? ये ES upon EP कॉमन है कि नहीं? तो अगर हम ये एक तरफ अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा simply ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS. Okay, so this is actually the single formula which can be used to find out the solution of any question if it is given. तो ये 6 क्वांटिटीज जो है, 6 कौन से क्वांटिटीज दिख रहे हैं जिसे? ES, EP, NS, NP, IS and IP. इन 6 क्वांटिटीज में से कोई भी अगर 2-3 दिए हैं, कोई भी 3 दिए हैं तो हम चौथा निकाल सकते हैं आराम से. ठीक है, यहाँ पे ठीक से. So if any 3 of them are given, then we can easily find out the 4th one easily, and rest of them also very easily. So क्योंकि हमारे पास ये पावर का फॉर्मूला भी हमारे पास है, और at the same time ये जो रेशियो ऑफ EMF is equal to the ratio of number of turns, ये भी ऑलरेडी हमारे पास है. ठीक है, so this is all about the transformer. You can see. Okay, so आज के लेक्चर में एक्चुअली 2-3 बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, but I will find out solution for that till next time. So just sorry for that. Yes, let us stop this lecture here. So we have finished with this chapter, electromagnetic induction. So just be prepared with the formulae in this chapter so that we can cover numericals in the next lecture. Okay, thank you all of you.